So now, is the screen is visible to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Just a minute. So today I'll start. In previous class we have studied different types of commands. Okay. Now today I'll start the application part of the MATLAB. Application part of MATLAB. See, as we know that MATLAB is used to store the data. Okay, data means the input value or input digit or input numbers in the form of rows and column. And since row and column is there, so that means it can be determined or it can be stored in the form of matrix. And matrix, what do you mean by matrix? Matrix is nothing but the collection of collection of array, Data. that is data in the format of array. ठीक है, array. So array is nothing but the collection of data, collection of data. So now we have to apply the MATLAB, or we have to do the application part of the MATLAB. The very first application of MATLAB is creating array, creating array. Okay, just a minute. Okay, creating array. So array means, what do you mean by array? Anyone from your end? What do you mean by array? What do you mean by array? Collection Collection of of things things है, यहाँ पे डेटा or a रिलेटेड है, तो कलेक्शन ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कलम. मैंने यहाँ पे लिख ही दिया है, ठीक है. कलेक्शन ऑफ डेटा, रो, कलम, six. फॉर्मेट टू स्टोर डेटा, sorry, store data. Okay, now that means an array consists of rows and columns. ठीक है. Now depending on the number of rows and columns, the array is classified into two categories. ओके, फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास में जब क्लास का टाइमिंग दूंगा उससे 2 मिनट के अंदर सभी ज्वाइन कर लेना, ठीक है. उसके बाद मैं किसी को एडमिट नहीं करूंगा क्योंकि बहुत ही दिक्कत हो रहा है, बीच बीच में स्विच करके तुम्हारा एडमिट करना, ठीक है. सो मेरा जो क्लास का टाइम होगा उससे 2 या 3 मिनट में ये रिलैक्सेशन टाइम दूंगा, उसी के बीच सभी ज्वाइन करो. उसके बाद मैं एक बार क्लास चालू कर लूंगा, तो आई विल नॉट अलाउ एनीवन to join the class. Okay, so next is depending upon the rows and columns, array can be classified into two categories. Array can be classified into two categories. One is one dimensional array and next is
3-dimensional. Three-dimensional array, and another one is three category, two-dimensional array. So our first motto is to create one-dimensional array. ठीक है, यही प्रॉब्लम होता है, सब एक ही साथ ज्वाइन नहीं करोगे, which I have to stop. Next class this should not be happened. Okay. So one-dimensional array. Suppose one-dimensional array. What do you mean by one-dimensional array? So that means row should be one. Either row. Or Yes, sir. Yes. column Column will be one. should be one. ठीक है, that is one-dimensional array. And 2D and 3D will be considered as multi-dimensional array. Multi-dimensional array. So I can classify the entire array in two parts. That is, first one is one-dimensional array and second one is multi-dimensional array. Okay. So either row is one or column is one, that is known as one-dimensional array. So now how MATLAB will know what do you mean by one-dimensional array or what is two-dimensional array? So very easy. Suppose if row or column is one, ठीक है, then the array is known as one-dimensional array. कोई भी एक अगर एक हुआ, अगर either row, number of columns but row एक, then it is known as one-dimensional array. Number of columns is one but number of rows, then it is known as one-dimensional array. Okay, so now I have to see which kind of array should be in one-dimensional array or multi-dimensional array. Okay. So first of all, one-dimensional array. In this case, first point is creating vector from known list of number. सपोज मैं बोल रहा हूं तुम लोगों का एमएससी का एडमिशन, ठीक है, ईयर बाई वाइज में अगर एक एरे करूंगा, ठीक है, सो ईयर बाई ईयर में एक अगर एरे करूंगा, सपोज दिस इज 2021, 2020, 2019, 2018, 2017. So data should be known. Suppose this is 100, this is 80, this is 110, this is 72, this is 120. ठीक है, सो यहाँ पे देखो डेटा, ये डेटा है तुम्हारा, ठीक है, ये डेटा है, डेटा का रो कितना है? फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हिच वन इज रो? दिस, हाँ, दिस वन इज रो और दिस वन इज रो. व्हिच वन इज रो? So first one is row. This is row and this is column. So number of columns are there, ठीक है.
सो नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है 5 है, C equal to 5 but R equal to हाँ 1, so that's why it is one dimensional One. क्योंकि हाँ बोलो yes. So if either रो और कलम इन दोनों में से किसी एक का वैल्यू अगर 1 होगा देन वी विल से दैट मैट्रिक्स और दैट एरे इज 1D array or one dimensional array. Now how to create this one dimensional array in MATLAB? ठीक है, so first of all, first is I have to क्वेश्चन वही है, ठीक है. फर्स्ट पॉइंट इज I have to row wise data entry. I have to entry the data row wise. That means यहाँ पे रो का वैल्यू 1 रहेगा एंड कलम इज मल्टी वेरिएबल. ठीक है, so in this case what will be the procedure? So suppose in the previous example, that is 2017, 18, 19, 20, 21, again I am writing 2000 2017, 2018, 2019, फिर आवाज करता है 2020, 20. अभी ठीक है? Is it clear? Hello? आवाज करता है आवाज करते हैं वैसा Wait. मैं एक बार. Okay. So what will be the procedure? ठीक है. Suppose in the previous example I have taken 120, 72, 110, 80, 100. 120, 72, 110, 80, 100. So this is the year and this is the data. So now मैं यहाँ पे दो चीज करूंगा. एक ईयर को मैं रो वाइज दिखाऊंगा, ईयर को रो वाइज दिखाऊंगा. ठीक है, तो ये वन डायमेंशनल. और नंबर ऑफ स्टूडेंट को कॉलम वाइज दिखाऊंगा. सो दिस इज वन डायमेंशनल ऑल्सो, एक कॉलम में आ जाएगा. सो फर्स्ट इज दैट इज रो वाइज, मैं ईयर को रो वाइज दिखाऊंगा. ठीक है, सो उसके लिए कमेंट क्या है, दैट इज सपोज ईयर का एक वेरिएबल ले लो, ये हो गया ईयर का वेरिएबल, इक्वल टू योर डेटा 1 स्पेस, सिंपली स्पेस, हाँ, डेटा 2 स्पेस, डेटा 3 स्पेस, डेटा 4 स्पेस, डेटा 5. सो ये हो गया. अगर मैं ऐसे ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा तो सिंपली ये क्या करेगा, रो वाइज दिखाएगा. नाउ कॉलम वाइज मैं स्टूडेंट को दिखाऊंगा, स्टूडेंट को कॉलम वाइज. So now I should have to take I have to take a variable that is std, that is student. Now third bracket, first 120 semicolon inside the bracket, next is 72 inside the bracket, next is 110 inside the bracket. So I am writing the syntax and digits I will write in the MATLAB window. So now data 1, data 2, data 3, semicolon, data 4, semicolon, data 5 and bracket close and then enter. So now I will check whether the data will be displayed or not. Okay. So now I am going to switch to MATLAB window. So in this case, first I have to take year. So year, this is the variable, equal to third bracket, that is 2021, 2000 कहाँ से स्टार्ट हो रहा था मेरा, that is
2007 से 17 से सॉरी, सो 2017 स्पेस 2018 स्पेस 2019 स्पेस 2020 स्पेस 9 sorry 21. Now third bracket close and then I have to enter. So देखो यहाँ पे रो वाइज हो गया, एक ही रो है, नंबर ऑफ कलम्स तुम्हारा 5 है, ठीक है, तो ये हो गया वन डायमेंशनल. नाउ आई हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ द स्टूडेंट दैट इज स्टडी. सो थर्ड ब्रैकेट, सो 120 सेमीकोलन, ठीक है, 72 सेमीकोलन, 110 सेमीकोलन, 80 सेमीकोलन, 100. नाउ ब्रैकेट क्लोज एंटर. सो सी यहाँ पे तुम्हारा कॉलम वाइज दिखा दिया. सो इफ सेमीकोलन विल बी गिवन इन बिटवीन टू डेटा इनसाइड द ब्रैकेट एंड एरे, ये एरे का सिंटैक्स है, ठीक है, एरे ऑलवेज विल बी इन द ब्रैकेट. एरे जो भी होता है, एरे ऑलवेज बी इनसाइड द ब्रैकेट. जब डेटा पुट करना है मुझे एरे को एक ब्रैकेट के अंदर पुट करना है डेटा, ठीक है. सो दैट इज एरे, एरे का फॉर्मेट. नाउ इफ आई हैव टू फाइंड द रो एरे दैट इज वन डायमेंशनल, रो मैट्रिक्स तुम कह सकते हो उसको, दैट इज एक रो बाकी सब कॉलम है, दैट इज रो एरे, रो वाइज एरे. सो no semicolon will be put, instead of semicolon I will put just space in between two data, ठीक है, then it will give you row column, row array. And if you will give semicolon in between two data inside the array, then the MATLAB will show you column array or one dimensional column wise vector. Okay, next is अनदर वे, इसका भी ऑल्टरनेट वे है, ठीक है. सपोज मैं इंस्टेड ऑफ सेमीकोलन मैं यहाँ पे कॉमा पुट कर रहा हूं, इंस्टेड ऑफ सेमीकोलन आई एम पुटिंग कॉमा. देखो रो वाइज हो गया, ठीक है. सो एंड अगेन आई एम पुटिंग इंस्टेड ऑफ स्पेस आई विल जस्ट एंटर आफ्टर द डेटा. स्पेस के बदले में एंटर दे रहा हूं, ठीक है, सॉरी सही ईयर 2020 एंटर, सॉरी year equal to 2017 enter, 2018 enter, 2019 enter, 2020 enter, 2021 and then close the array, then I will get column array, ठीक है. सो इसका दो फॉर्मेट है, आई विल क्रिएट द एरे इन टू फॉर्मेट, ठीक है, एनीवन यू कैन apply. So first one is to create row wise one dimensional array, ठीक है. फर्स्ट वेरिएबल नेम इक्वल टू data 1 space data 2 space, that is space, this is symbol of space, b लेके and cross data n. So b cross is stand for space bar, ठीक है. next is variable, second way is next is variable name equal to डेटा 1 एंटर, तो ये आ जाएगा डेटा 2 एंटर, डेटा 3
enter, and so on up to data n, and at the end you have to close the bracket. ठीक है, so that's why it will give you, so that it will give you the entire array. So this is the two way in which you can create row wise one dimensional array. Now to create column wise 1D array, क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑप्शन है वेरिएबल नेम इक्वल टू data1 semicolon data2 semicolon and so on data n. ठीक है, ब्रैकेट क्लोज. सेकेंड वन इज वेरिएबल नेम इक्वल टू data1 comma data2 comma that up to data n. So this is the two way in which through which you can create, this is the two way in which you can create column wise one dimensional array or row wise one dimensional array. Okay, got it? Yes, sir. सर हाँ बोलो. सर वेरिएबल नेम जो सेकंड टाइप में लिखा है रो वाइज सेकंड टाइप, वो तो सर कॉलम आ जाएगा ना, जो डाटा 1 एंटर डाटा 2 एंटर वाला. नहीं, वो कॉलम नहीं आएगा. ये दो तरह से मैंने यहाँ पे लिख के दिया, देखो, ये देखो. हाँ, सॉरी, ये थोड़ा इंटरचेंज होगा, तो उल्टा हो गया सर. जो कॉलम वाइज सेकंड वन. हाँ, ठीक. ये आ जाएगा यहाँ पे और ये आ जाएगा यहाँ पे. थोड़ा करेक्शन कर लेना, ठीक है? So that's how I will create one dimensional row wise or one dimensional column wise array. Now suppose you have a lots of data. ठीक है, ये तो हो गया 5 साल का. अगर मैं बोलूंगा तुम्हारे दुमका का पॉपुलेशन पिछले 50 साल का पॉपुलेशन, ठीक है, इंसर्ट करो, ठीक है, या पिछला 50 साल को डेटा में एंट्री करो, ठीक है, तो तुम क्या करोगे? 2021, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 ऐसा करके 50 साल एंट्री कर सकते हो, ठीक है. सो दिस इज अ लॉन्ग प्रोसेस एंड व्हेनेवर वी आर यूजिंग एनी काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, आवर मेन एम इज टू यूज मिनिमम टाइम टू गेट मैक्सिमम रिजल्ट. अगर तुम्हें डेटा इनपुट करने में ही 10-15 मिनट लग गया तो आई विल मॉडिफाई द सॉफ्टवेयर और आई विल मॉडिफाई द कमेंट, ठीक है. सो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसका ऑप्शन है, सपोज इसके लिए है क्रिएटिंग वेक्टर विथ कांस्टेंट स्पेसिंग by specifying the first term, the spacing and last term. So suppose मैं बोल रहा हूं 1 से 100, 1 to 100, ठीक है, इसको तुम रो वाइज या कॉलम वाइज वन डायमेंशनल एरे में रिप्रेजेंट करो. सो अगर मैं प्रीवियस कमेंट का यूज करूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 1 2 3 4 5 6 इसको ऐड करना पड़ेगा. ओके, सो डोंट डू दिस, क्योंकि लॉन्ग टर्म तुम्हें एंट्री करने में अगर 10-15 मिनट लग गया, ठीक है, उसका रिजल्ट मिलने में तुम्हें फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड. सो ऑब्वियसली मुझे देखना पड़ेगा कि मेरा एंट्री टाइम भी कम लगे ताकि मेरा ज्यादा से ज्यादा में आउटपुट जल्दी निकले. दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है. हम लोग एनालॉग कैमरा क्यों यूज नहीं करते? क्योंकि एनालॉग कैमरा में बहुत ही दिक्कत है. रील भरो, उसको रील को एडजस्ट करो, फ्लैश लेंस को ठीक करो, उसके बाद तुम क्लिक करते हो फोटो, फिर फोटो क्लिक करने के बाद उसको वॉश कराने के लिए स्टूडियो लेके जाओ. इज अ लॉन्ग प्रोसेस. सो दैट्स व्हाई वी आर मूव टू डिजिटल फोटोग्राफी के सिंपली फोन का कैमरा ऑप्शन ऑन करो और क्लिक करो,
ठीक है। सो हम लोगों का मेन एम है बाई गिविंग मिनिमम टाइम आई विल गेट द मैक्सिमम रिजल्ट। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए है वेरिएबल नेम इक्वल टू एम कोलोन, नॉट सेमीकोलन, ओके, क्यू कोलोन एन, where m is the फर्स्ट टर्म, m हो गया फर्स्ट टर्म, q हो गया स्पेस, q हो गया स्पेसिंग, कांस्टेंट स्पेसिंग होना चाहिए, ठीक है। n हो गया लास्ट टर्म। सो नाउ अगर मैं 1 से 100, ठीक है, वेरिएबल नेम 1 to 3, एक मिनट रुको, ओके, 1 से 100 वेरिएबल नेम, वन टू 100, ठीक है। सो नाउ 1 फर्स्ट टर्म 1 to 100, एक एक करके अगर गैप लूंगा तो इसका गैप होगा 1, दैट इज 1 से 2 का बीच में गैप है 1, 2 से 3 के बीच में गैप है 1, एंड देन 100 इज द फाइनल टर्म। सो इट विल गिव द एंटायर रिजल्ट ऑफ द डेटा। तो मैं मैटलैब में देख रहा हूं इसको। सो वेरिएबल नेम सपोज नंबर्स 1 to 100, 1 colon 100 bracket close. So it will give you entire data. That is, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 दे रहा है, कोलोन दे रहा है, ठीक है, रो वाइज दे रहा है। ना अगर मैं ब्रैकेट यूज ना करूं, ठीक है, देखता हूं क्या होता है। So also it will give you result. So in this case your bracket is optional, ठीक है, but in first case, ठीक है, जो मैं पहले एनालॉग वाइज अगर मैं डेटा पुट कर रहा हूं तो फर्स्ट केस में तुम्हारा ब्रैकेट इज मैंडेटरी, और ब्रैकेट्स आर ऑप्शनल, ओके। सो ब्रैकेट दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ओके। एंड इन दिस केस ऑलवेज रिमेंबर दैट तुम्हारा जो मैटलैब आएगा, तुम्हारा जो डेटा आएगा विल बी रो वाइज वन डायमेंशनल एरे, यहाँ पे कॉलम वाइज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये कॉलम है। कॉलम अगर होता है तो रो वाइज वन डायमेंशनल एरे विल बी क्रिएटेड, ओके। सो नाउ मैं ईयर वाइज देख रहा हूं, ठीक है, 5 साल का ईयर है, सो CLC 5 ईयर है, 5 साल ईयर है। सो नाउ ईयर वाइज में डेटा एंट्री करूंगा। ईयर 5 साल का ईयर है, शुरू का ईयर कितना है 2017, ठीक है, ईयर्स के बीच में गैप कितना है, 1 साल का गैप है। फाइनल ईयर कितना है 2021, सो इट विल गिव मी 2017 18 19 20 21, ओके। ये तभी तुम्हें अप्लाई करोगे जब दो डेटा के बीच में स्पेस जस्टिफाइड होगा, इक्वल होगा, इक्वल स्पेस विल बी देयर, ठीक है। अनइवन स्पेस विल नॉट बी कंसीडर्ड बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला और बाय यूजिंग दिस कमांड, ओके। सो यहां पे इट कैन बी, इसका यूज करने का एक है तरीका है, दैट इज स्पेसिंग। दिस इज ओनली इक्वल स्पेसिंग बिटवीन टू डेटास, ठीक है। तो अगर दो डेटा के बीच में इक्वल स्पेस हुआ देन ओनली यू कैन यूज दिस फॉर्मेट, गॉट इट? Yes, sir. ओके। नाउ इसको थोड़ा हम मॉडिफाई करते हैं, क्या बीच का स्पेसिंग अगर हम नहीं देंगे तो क्या होगा, ठीक है, बीच का स्पेसिंग अगर हम नहीं दे रहे हैं,
बाई चांस होता है ना, एक चीज को हम लोग तोड़ मरोड़ को देखते हैं कि स्पेसिंग अगर नहीं देंगे तो क्या होगा। सपोज ईयर, ठीक है, ईयर मैं पहले स्पेसिंग देकर लिख रहा हूं, दैट इज 2017, 2 साल का गैप है, एक एक ईयर में 2 साल का गैप है, एंड फाइनल इज 2021। सो देखो यहाँ पे सिर्फ 3 ही होगा, 17, 19, 21। नाउ इफ आई व्हाट हैपन इफ आई विल omit this space, that is 2017 and 2021, then what will happen? See, अगर तुम स्पेसिंग नहीं दोगे, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट मैटलैब विल टेक अ प्री डिफाइंड स्पेस एज 1, ठीक है। अगर 1 है तो जरूरत नहीं है स्पेसिंग को मेंशन करो, मोर देन 1 है तो स्पेसिंग को मेंशन करो। लाइक पहले मेरा ये क्या था, नंबर ये था, सो यहाँ का 1 का स्पेसिंग मैं नहीं दूंगा, तो देखो 1 to 100 1 स्पेसिंग ये पकड़ लिया। और इफ 1 इज द स्पेस देन नो नीड टू गिव द स्पेस सेपरेटली, तुम डायरेक्ट फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म यूज कर सकते हो। तो इसके लिए कंडीशन क्या है, इसके लिए मेरा कंडीशन क्या है, इफ स्पेसिंग is omitted in command, then MATLAB will consider the spacing as 1 by default, ठीक है। सो दैट इज द कंडीशन। नेक्स्ट इज दूसरा कंडीशन क्या है, नेक्स्ट कंडीशन में आऊंगा, दैट इज नेक्स्ट कंडीशन में आऊंगा, दैट इज क्रिएटिंग वेक्टर, that is array, vector is nothing but the array, creating vector with constant spacing by specifying the first term, last term and number of terms, कि 1 से 100 के बीच में शुरू का 50 नंबर मुझे चाहिए। ऐसा होता है ना कि 1 से 100 के बीच में शुरू का 50 नंबर मुझे चाहिए, दैट इज स्पेसिंग 1 है, इक्वल स्पेसिंग, ठीक है। सो इन दिस केस मैं क्या करूंगा, इसका ऑप्शन क्या है, दैट इज सिंटैक्स है वेरिएबल नेम लाइन स्पेस फर्स्ट ब्रैकेट xi xf and n, where xi is the first term, xf is the last term and n is the number of terms। अगर स्पेसिंग 1 रहा तो ये सिर्फ स्पेसिंग 1 के लिए ही एप्लीकेबल है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स। सो नाउ मैं इसको वेरीफाई करता हूं, that is CLC, okay, numbers equal to line space, that is the command, line space ब्रैकेट, फर्स्ट ब्रैकेट, पहला टर्म है 1, ठीक है, 1 के बाद कॉमा, फाइनल टर्म है सपोज 100, कॉमा,
मैं फर्स्ट 50 टर्म्स लूंगा या फर्स्ट 60 टर्म्स लूंगा, फर्स्ट 60 नंबर्स इन बिटवीन 1 to 100, तो क्या होगा? सॉरी, लिनस्पेस ई चला है, लिनस्पेस। सो यहाँ पे भी तुम लिनस्पेस दे दो, ठीक है। Linspace. Okay, so now you will see that it will show you first 50 terms in between 1 to 60, ठीक है। तो ये क्या करेगा, टोटल 100 टर्म को 60 से डिवाइड कर देगा और उसको 60 नंबर ऑफ टर्म्स में तुमको डिफाइन करेगा, ठीक है। सो ये 1 to 60 नहीं दिखाएगा, 60 को डिवाइड करेगा, इक्वली स्पेस करेगा, ठीक है। नाउ सो यहां पे मैं कह सकता हूं, इसको मॉडिफाई वाइज कह सकता हूं कि स्पेसिंग will be defined by MATLAB। देखो, अगर मुझे स्पेसिंग 1 चाहिए, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, लिनस्पेस 100 है तो मैं 100 नंबर्स दूंगा, तो देखो स्पेसिंग 1 हो गया, ठीक है। पहले में क्या था, टोटल 100 नंबर्स को मैं 60 से डिवाइड कर रहा हूं, तो स्पेसिंग इक्वल स्पेसिंग 1 से ये 1 और ये 2.678 का जो ये डिफरेंस है, इसके साथ इसका डिफरेंस सेम होगा, इसके साथ इसका डिफरेंस सेम होगा, तो वो टोटल 100 नंबर को 60 नंबर ऑफ टर्म्स में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। सो ये हो गया इक्वली डिवाइडेड। व्हेन यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट अ सीरीज ऑफ नंबर इन इक्विवेलेंट विथ इक्वल स्पेस इन some numbers of terms, then we are using linspace command, ठीक है। Sorry. So now if I will not give the number, वहां पे मैंने जैसे स्पेसिंग को ओमिट करके कमेंट लिखा था, यहाँ पे मैं नंबर को कॉमिट कर दूंगा, तो देखो वो बाय डिफॉल्ट 1 ले लेगा, ठीक है। लिनस्पेस वो बाय डिफॉल्ट 1 ले लेगा, ठीक है। सो 100 एलिमेंट विल बी डिस्प्लेड। नेक्स्ट अगर मैं 1 to 50 ले लूं, 1 to 50 विदाउट गिविंग द नंबर्स, देन वो देखो 100 नंबर्स देगा। सो इफ, इसका कंडीशन क्या है, इसका कंडीशन है इफ number of elements n is omitted, then MATLAB will display 100 elements by default, ठीक है। सो ये 100 एलिमेंट को बाय डिफॉल्ट दिखाएगा। नाउ नेक्स्ट इज वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मल्टी डायमेंशनल एरे। वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड वेरी यूजेबल, मल्टी डायमेंशनल array, and in this case we will see 2D array। सो 2D array का एक एग्जांपल बोलो, अगर किसी को याद हो या अपना कॉमन सेंस लगा के बोल सकते हो, क्योंकि ऑल आर फ्रॉम मैथमेटिक्स बैकग्राउंड। 2D array,
कोई भी। टू डी एरे। 1D में क्या होता है, रो या कलम 1 होगा, और अगर रो और कलम 1 होगा तो कलम एंड रो विल बी मल्टी। अगर एक रो नंबर ऑफ कलम्स, एक कलम नंबर ऑफ रो हो सकता है। तो मल्टी डायमेंशन में 2D कैसे होगा? सर आवाज नहीं आ रहा है। अभी ठीक है? यस सर। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ मल्टी डायमेंशनल या 2 डायमेंशनल एरे का एक एग्जांपल तुम लोगों को पता है? सर 2D में शायद रो होगा तो कॉलम होगा। मैं एक टर्म लिखूंगा, ठीक है? वो टर्म लिखते ही तुम लोगों को पता चल जाएगा ये 2D एरे होता है क्या है। टू डी मैट्रिक्स, वहां पे क्या होता है, रो 1, रो 2, रो 3 एंड सो ऑन, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 एंड सो ऑन। तो ये हो गया मल्टी डायमेंशनल 2D। यहाँ पे रो एंड कॉलम 2D, 2 डायमेंशनल है, तो ये हो गया मल्टी डायमेंशनल। नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है? सो ये हो गया एक मल्टी डायमेंशनल एरे, और इन केस आई विल से 2D बिकॉज एक रो यूज होता है एंड कलम यूज होता है। 2 डायमेंशन है, रो वाइज डायमेंशन या कलम वाइज डायमेंशन, ठीक है? तो वहां पे क्या होता है, रो अगर एक है तो वहां पे रो वाइज डायमेंशन हो रहा था, कलम अगर एक है तो वहां पे सिर्फ कलम वाइज डायमेंशन हो रहा था। तो यहाँ पे रो एंड कलम दोनों को कंसीडर करेंगे। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज 2 डायमेंशनल एरे एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय रो इनटू कलम मैट्रिक्स, ठीक है? ओके सर। सो ओके नहीं, ये तुम लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है? ये तुम लोग का मैथमेटिक्स तुम लोग का बेस है, तो यू शुड नो दिस, ठीक है? R इंटू सी। सो नाउ मल्टी डायमेंशन कैसे होता है, ठीक है? ऑब्वियसली रो इक्वल टू कलम हो सकता है और रो नॉट इक्वल टू कलम हो सकता है। दोनों केस में ही ये सेटिस्फाई करेगा, दैट इज 2D मल्टी डायमेंशन और 2D मैट्रिक्स और 2D एरे, दोनों सिचुएशन में ही ये हमको सेटिस्फाई करवाएगा। ओके, सो नाउ हाउ टू क्रिएट मैट्रिक्स इन, एक मिनट, just a minute. So now I will see how to create matrix, okay, in MATLAB. So उसका भी MATLAB क्या है, कलेक्शन ऑफ मैट्रिक्स, क्या है, कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो मुझे पहले से पता है कि मेरा कॉलम मैट्रिक्स कैसे यूज होता था, रो मैट्रिक्स कैसे यूज होता है, कैसे रिप्रेजेंट होता है। तो दोनों को कॉम्बाइन कर दो। सो सपोज टॉपिक इज क्रिएटिंग मैट्रिक्स, matrices. Okay, so first I have to issue rows. You have to issue the row values, then you have to issue the column values. Okay, next सिंटैक्स, इसका सिंटैक्स क्या होगा, वेरिएबल नेम इक्वल टू ब्रैकेट, सपोज 1 2 3, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेगा मैटलैब, एज ए रो। नाउ नेक्स्ट कॉलम को रिप्रेजेंट करूंगा 4 5 6, नेक्स्ट 7 8 9। सो पहले मैं रो को डिफाइन कर रहा हूं, फिर थ्रू सेमीकोलन मैं क्या कर रहा हूं, मैं कॉलम को डिफाइन कर रहा हूं, ठीक है? जैसे ही मैं देखो, मैं फॉर्मेशन बना देता हूं, सपोज मैट्रिक्स 1, दैट इज द वेरिएबल नेम। ओके, नाउ इक्वल टू, पहले
I have to, if I will generate this 3, then it will create 1 2 3. And if matrix 2, if I will give semicolon in between the two data, it will give you 1 2 3. Now I have to combine. मुझे कॉलम कैसे बनाना पता है, रो कैसे बनाना है पता है. Now I have to combine. Now my matrix is 1 space 2 space 3, sorry 3. तो ये हो जाएगा तुम्हारा एक रो में आ जाएगा. नेक्स्ट मुझे नेक्स्ट ये चाहिए, वैल्यू चाहिए नेक्स्ट कॉलम पे, तो सेमी कॉलम 4 5 6 ये हो गया और एक रो पे आएगा. नेक्स्ट और एक कॉलम चाहिए 7 8 9. सो ब्रैकेट क्लोज. We'll see that 1 2 3 5 4 5 6 7 8 9. So this is how I will create the matrix. Okay, again another process is, मुझे पता है कैसे रो मैट्रिक्स क्रिएट करना है. दैट इज मैट्रिक्स सपोज ए. ठीक है, मैट्रिक्स ए. मुझे पता है कैसे रो मैट्रिक्स क्रिएट करना है दूसरा तरीके से. एक है 1 2 3. नाउ एंटर 4 5 6. एंटर 7 8 9. Bracket close. Also gives me the matrix. Third one is I know how to create the matrix. B equal to 1 comma 2 comma 3. अगर ये देंगे तो क्या होगा 1 2 3. So I can write in this manner 1 2 3 semicolon 4 comma 5 comma 6 semicolon 7 comma 8 comma 9. So this is also give me the matrix. So रो और कॉलम मैट्रिक्स का जो फॉर्मेशन उसको कॉम्बाइन करके मैं एक मैट्रिक्स और 2 डायमेंशनल एरे क्रिएट कर सकता हूं थ्रू मैटलैब कोड. गॉट इट? Yes, sir. सो नाउ 0 1s एंड आई कमेंट. ठीक है, 3 स्पेशल कमेंट है. zeros 1s and I कमेंट. ये तीनों कमेंट स्पेशल कमेंट है इन केस ऑफ 2D एरे. ओके, सो जीरो कमेंट क्या होता है? जीरो कमेंट क्या होता है? सपोज all elements of matrix is 0. इसका कमेंट है 0 रो कॉमा कॉलम and this is variable name equal to 0, sorry zeros, not zeros. Now more than 1 zeros. तो इसका कमेंट होता है row and column you have to mention, and according to the row and column all the elements will be 0. Next one is ones. So ones कमेंट 0. अगर all element 0 है तो ones कमेंट क्या होगा? all element 1. हाँ, all elements of matrix is 1. So इसके लिए क्या है? सेम है, 0 के बदले सिर्फ 1 बैठा दो. वेरिएबल नेम इक्वल टू ones 1 sorry रो कॉमा कॉलम. ओके, नाउ I कमेंट
आई कॉमेंट। आई कॉमेंट का काम क्या है? द डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स, और स्क्वायर मैट्रिक्स विल बी 1। ठीक है, ऑल एलिमेंट्स आर 1, ऑल एलिमेंट्स आर 0। ठीक है, सो ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स विल बी 1 यूजिंग आई कॉमेंट। ठीक है, सो देखते हैं। Now I have to use that is CSC. That is, I will give a matrix name 0. That is, all element will be 0. ठीक है, 0 equal to, command is zeros. I will take 5:4. That is, 5 is the row, 4 is the column. Now enter. So we will see 5 rows, 1 2 3 4 5 rows, and 4 columns. That is 1 2 3 4. All elements will be 0. Okay, now next is matrix 1. That is, all element will be 1. So the command is ones. Okay. See, all the elements will be 1. Now I matrix. I matrix, that is matrix I. It will be square matrix, so no need to define row and column separately. 5, that means 5 row 5 columns. 4, that means 4 row 4 columns, because it is in this case R equal to C. So I have to define, or I have to mention any one of the value, that is either row value or column value. So मैं एक बार दिखा देता हूँ। I 5, 5 स्क्वायर मैट्रिक्स है, so it will gives you diagonal matrix. और एक दिखा देता हूँ, कोई भी एक वेरिएबल में अगर दूंगा I 5, that means 5 cross 5. So also it will gives you all diagonal element equal to 1. Okay, so this is the entire process to represent the MATLAB, or represent the matrix or 2D array in MATLAB. In next class I will discuss different operation of matrix, that is summation, how to add extra element, or how to delete elements from the matrix. This all will be discussed in the next class. Okay, so till now, any doubts from today's topic? Any doubt? And don't leave the chat. I will provide you the attendance link. Okay, Sir, attendance link, sir. हाँ दे रहे Sir? हाँ बोलो। सर यहाँ पर तो माने 2x2 या 3x3 नहीं करने से भी हो रहा है सर। मैट्रिक्स इक्वल टू आई, ये फर्स्ट ब्रैकेट में 2, 4 ये लिखने से भी तो आ रहा है। नहीं, आई का देखो, आई जब मैंने लिखा था वहां पे लिखा था स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का कंडीशन क्या है? हाँ सर, 5 रो तो 5 कॉलम, 2 रो तो 2 कॉलम। हाँ, तो यहाँ पे 2,3 नहीं होगा। ठीक है, मैं दिखा दे रहा हूँ। हाँ सर, देखिए मैं दिखा दे रहा हूँ। सपोज आई, ठीक है, एक मिनट, मैं दूसरे लाइन पे जा रहा हूँ। आई सपोज 4,5 देखोगे यहाँ पे नॉट डिफाइंड रहेगा। यहाँ देखो, यहाँ पे आ गया, ठीक है, 5 रो 4 रो 4 कॉलम। ये वाला एलिमेंट देखो, लास्ट वाला एलिमेंट देखो, यहाँ पे सभी एलिमेंट 0 है, तो ये आई मैट्रिक्स नहीं होगा। इसका डायगोनल एलिमेंट नहीं है। ये डायगोनल किसका हो सकता है?
स्क्वायर का डायगोनल हो सकता है ऑल द एलिमेंट्स हैव अ वैल्यू इन दिस डायगोनल। तो यहाँ पे लास्ट देखो, जो लास्ट वाला कॉलम है यहाँ का ऑल एलिमेंट 0 है, बट रेस्ट ऑफ 4 एलिमेंट्स का कोई भी एक एलिमेंट 1 है, बाकी सब 0 है। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स का यही कॉन्सेप्ट है कि कोई भी एक एलिमेंट, ठीक है, नॉन जीरो एलिमेंट होगा। हाँ सर, ये डायगोनल नहीं हो रहा है। हाँ। ये डायगोनल नहीं हो रहा है, डायगोनल ये नहीं हो रहा है, तो ऑलवेज आई मैट्रिक्स विल बी अप्लाइड और आई कमेंट विल बी अप्लाइड ऑन द स्क्वायर मैट्रिक्स। गॉट इट? Yes sir, yes sir. Okay. Okay, so I am going to leave the session. So tomorrow I will take your C++ and कल का क्लास में एक मिनट रुको, कल फ्राइडे है ना, कल का क्लास में 11 बजे से लूंगा, बिकॉज सेकेंड हाफ से यहाँ पे एग्जाम चल रहा है, तो सेकेंड हाफ में अभी खाली नहीं रहूंगा। ठीक है, नेक्स्ट 1 वीक। सो कल क्लास 11 से 11:15 में मैं लिंक दे दूंगा। सॉरी, 11 बजे से क्लास ले लूंगा, उससे लेट करूंगा तो उधर प्रॉब्लम हो जाएगी। लिंक भेजिए वो चैट बॉक्स में आप। अच्छा, तुम लोग कल 10:30 बजे खाली रहोगे? यस सर। सर हाँ सर। नहीं सर, हाँ सर। नहीं हो पाएगा हाँ सर, रहेंगे ना खाली का। यस सर। क्योंकि कल से ठीक है, मैं ये एक तुम लोगों को व्हाट्सएप में डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, कल मुझे 12 बजे के अंदर तुम लोगों का क्लास खत्म करना है, क्योंकि 12:30 या 1:45 बजे से मेरा ये कॉलेज में ये एग्जाम ये सेंटर गिरा है। सर 11 बजे से ले लीजिएगा, 11 से 12। ठीक है, तो कोशिश करो सब 11 बजे के अंदर ज्वाइन करो। ठीक है, वरना वो क्लास चलते चलते मैं अगर इंटरप्ट होता हूँ तो मेरा खुद का भी प्रॉब्लम होता है। बहुत सारा पॉइंट मैं सोचता हूँ कि बताऊंगा, इंटरप्शन के चलते बहुत सारा पॉइंट मिस भी हो जाता है। ठीक है, ओके ठीक जी, ओके, थैंक यू यू सर। ऑल। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।